Hello, Assalamu alaikum. I am Syed Asif Ali Naqvi, Assistant Professor of Physics in Government Degree College, Malirkand, Karachi. I am very thankful to Education Department, Government of Sindh, that it provided me a great chance to deliver my lectures to the students. I think so. It is very beneficial for the teachers as well as for the students. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sindh College Lectures YouTube channel, launched by College Education Department, Government of Sindh. Today we'll discuss on the distribution of chapters of first year and second year textbooks of physics published by Sindh Textbook Board, Jamshoro, Hyderabad, in which we also discuss the scope of physics belongs to chapter number 1 in first year physics. So we'll start from the definition of science. What is science? हम देखेंगे कि साइंस क्या है. Science is a knowledge which is obtained by observations and experiments. वो इल्म जो मुशाहिदात से और तजुर्बात से हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं. इंसान केवमैन पीरियड से ऑब्जर्वेशंस करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, स्टोन्स को रब करके आग रोशन करता था, फायर ऑन करता था. तो वो इल्म जो तजुर्बात से, एक्सपेरिमेंट से एंड ऑब्जर्वेशन से हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं. वी डिवाइड साइंस इनटू three branches. Number 1, physical science, that generally deals with non-living matter. जो कि non-living matter, वो matter जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, जनरली फिजिकल साइंस उस चीज़ को डील करती. मैटर, यू नो वेरी वेल कि a matter is defined as everything which occupies space and has some volume is called matter. And we also know there are 3 states of matter. You can say 4 states, but the 4th state, that is plasma, is existing in stars, not in the planets. So branches of science: physical science, biological science that generally deals with living matter, social science that deals with social matters. Now we come to the definition of physics. Physics क्या है? Physics, chemistry are the branches of physical science in which generally we deal with non-living matter. Physics की definition ऐसी होनी चाहिए जो हमें जो physics को distinguish करे from the other branches of physical science. So we state this definition. Physics is one of the main branches of physical science that deals with the study of all the phenomena of matter and energy, their mutual relationship, and all the interactions, that is forces, existing in nature. This is what the definition of physics. हमें इसे समझना है कि what do you mean by phenomenon of matter and energy, all the phenomena of matter and energy. What will be the example of this? When you switch on the wings of a fan starts rotating. जब हम स्विच ऑन करते हैं फैन के विंग्स रोटेट करना शुरू कर देते हैं. फैन के विंग्स क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, मेटल के बने हुए, और वो रोटेशन शुरू कर देते हैं. दिस इज अ फिनोमेना ऑफ मैटर.
You can also say it's a phenomenon of energy too, because when you switch on, you are providing electrical energy to the fan, and this electrical energy is changing into rotational kinetic energy. So this is not only the phenomena of matter but also the phenomena of energy. But the thing is that कि आप किस चीज़ को focus कर रहे हैं. Now second one, their mutual relationship, the most famous relationship you have already studied in metric classes, E is equal to mc square, which is a relationship between mass and energy. And third one, all the interactions, forces existing in nature. नेचर के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं, मसलन ग्रेविटेशनल फोर्स, एटॉमिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कूलम इंटरैक्शन, Coulomb attraction, Coulomb repulsion, etc. We discuss all these forces in physics. Why we call it interaction? Because gravitational force is also known as gravitational interaction. Intermolecular force is also known as intermolecular interaction. So we can also use interaction in replacement of a word force. Now we will discuss the branches of physics. There are two main branches of physics. This is because of the development in physics in different periods of history. So we divide physics into two main branches. Number one, classical physics, and second one is modern physics. You can say from caveman period to the end of 19th century जो कुछ फिज़िक्स में हुआ वो क्लासिकल फिज़िक्स का हिस्सा बना. मसलन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैक्सवेल्स इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सेट्रा, ये कुछ अहम डिस्कवरीज थी, अहम डेवलपमेंट थी जो इस पीरियड में फ़िज़िक्स में हुई. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th century टू डेट, 20th सेंचुरी के आगाज़ से लेकर अब तक जो कुछ फिज़िक्स में डेवलपमेंट हो रही है वो किसका हिस्सा बन रही है? मॉडर्न फिज़िक्स का. नाउ देयर आर 6 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स. क्लासिकल फिज़िक्स की 6 ब्रांचेस हैं विच इज़ अ रिच फिज़िक्स. नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 वेव्स, नंबर 3 साउंड, नंबर 4 optics, number 5 heat and thermodynamics, and number 6 electricity and magnetism. While there are number of branches of modern physics, for example particle physics, nuclear physics, molecular physics, atomic physics, plasma physics, astrophysics, biophysics, etc. अब हम देखेंगे कि किस तरह हमारी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स की बुक है फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, उनमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में किस तरह से ये टॉपिक्स डिवाइड हो रहे हैं. देयर आर 10 चैप्टर्स इन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 to 10. चैप्टर 1 इज़ अ स्कोप ऑफ फिज़िक्स, जो कि हम आज हमारा मौजू भी होगा स्कोप ऑफ फिज़िक्स. इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन. Second one, scalars and vectors, which is also briefed as vector analysis. Vector analysis is a tool जो हम classical physics में भी यूज़ करते हैं and modern physics में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये classical या modern physics नहीं. Chapter 3 motion, title of the chapter motion है. Chapter 4 motion in 2 dimension, जिसमें हम circular motion और projectile motion को study करेंगे. Chapter number 5 torque, angular momentum and equilibrium. Chapter number 6 gravitation से ताल्लुक़ रखता है. Chapter number 7 work, power and energy. आप देखेंगे कि from chapter 3 to chapter 7 ये सारा का सारा मैकेनिक्स कहलाता है, which is one of the 6 branches of classical physics. तो हम ये सारा classical physics पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे. आमतौर पे हम टॉपिक, हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको टॉपिक बताते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं. ज़रा अगर डिसेंट आंसर हो तो हम कह सकते हैं कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या हम क्लासिकल फिज़िक्स
के रीजन में। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड है जिसका टाइटल, और यू नो वेरी वेल वेव्स एंड साउंड आर दी ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इसी तरह चैप्टर 10 जो है 9 में नेचर ऑफ लाइट यानी वेव ऑप्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 10 में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और यू कैन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो 9 और 10 का ताल्लुक ऑप्टिक्स से है, और ऑप्टिक्स इज वन ऑफ द 6 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। नाउ कम टू द सेकेंड ईयर फिजिक्स। इसमें भी हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टू 20। चैप्टर नंबर 11 का टाइटल है हीट, जिसका ताल्लुक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, विच इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 13 में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डील करेगा। चैप्टर 15 में हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर 16 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें जो पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, और इसके अलावा चैप्टर 12 टू 15 ये सारा का सारा जिस क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो स्टिल वी आर स्टडिंग या वी आर इन अ रीजन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अभी तक हम क्लासिकल फिजिक्स में ही घूम रहे हैं। हाँ, इस चैप्टर 16 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका ताल्लुक ज़ाहिर है डायरेक्टली क्लासिकल फिजिक्स से नहीं है। अभी हमारा ये मौजू नहीं। चैप्टर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी एडवेंट यानी ज़हूर, आगाज़ जैसे कह लें कि मॉडर्न फिजिक्स हम चैप्टर 17 में स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ख्वाहिश भी थी यकीनन स्टूडेंट की कि भाई अभी 16 तक तो क्लासिकल फिजिक्स ही चल रहा है, तो 17 मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ होगा। चैप्टर नंबर 18 जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि एटॉमिक फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। चैप्टर नंबर 20 जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। 19 जो है दी एटॉमिक न्यूक्लियस है। इन दोनों चैप्टर्स का ताल्लुक न्यूक्लियर फिजिक्स से, जिसमें जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ यू कैन से न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशन जो चैप्टर नंबर 20 में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमारे ये जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं इनका क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स से किस तरह रिलेशन बन रहा है। नाउ वी कम टू द न्यू टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट फॉर साइंसेस। इसमें कुछ बड़े नाम का तज़किरा हम करते हैं। इसमें पहला नाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान वॉज बोर्न इन कूफा, इराक। हिज contribution for science are as follows. He described scientifically calcinations and reduction. First time derived various laws of chemistry, improved the method of evaporation, sublimation, melting and crystallization. And he wrote almost 30 books. Al-Biruni, अबू रेहान अल-बैरूनी इसका पूरा नाम है, वॉज दी कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्न सीना, यानी इब्न सीना के काम को इसने आगे बढ़ाया। ही वॉज फेमस एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज़ हिज बुक किताबुल कानून अल-मसूदी, which is considered as an encyclopedia of astronomy. Now, third one is Abu Abdullah, was a great astronomer. His contributions are he improved the calculations about the orbits of moon and certain planets. He proved the possibility of annual eclipses to the sun. He popularized the trigonometric ratios, sine, cosine, tangent, etc. Al-Khwarizmi
made remarkable contributions, which are: he was the founder of analytical algebra. He wrote a number of books on algebra, astronomy, and arithmetics. He introduced the term Algorian Algorian's logarithm. Umar Khayyam. Umar Khayyam was one of the prominent mathematicians of Islamic history. He was also a poet. He improved the calendar in 1079. Ibnul Haytham was born in Basra. His contributions are as follows. He made research in optics to his highest degree at the time. His masterpiece was his book Kitabul Manazir. He discussed the propagation of light, colors, optical illusions, reflection and refraction of light. He constructed the pinhole camera. Last one, Abu Bakr al-Zakaria al-Razi. Al-Razi was the most prominent and great physician of Islamic history. He wrote about 200 books. His most contribution is in the field of medicine. Ibn Sina. Ibn Sina was famous for his original research in the field of medicine. His contributions are: he wrote the use of catheters. He wrote a great book, Al-Qanun fil Tib, for medical research. He gave intravenous injections by means of silver syringe. जब हम फिज़िक्स को समझ लेते हैं या फिज़िक्स की डेफिनेशन से अवेयरनेस हो जाती है कि फ़िज़िक्स क्या है, तो पहली चीज़ जो जहन को स्ट्राइक करती है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का तस्वीर. फिज़िक्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़. व्हाट आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़? We must know the quantities directly or indirectly measurable are called physical quantities. For example, length, time, temperature and volume, etc. लेंथ को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट की जा सकती है. फॉर एग्जांपल, ये मैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर. We pour some liquid into the cylinder, then we can easily find out its volume. कितना हमने उस लिक्विड को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में पोर किया है, ये वॉल्यूम हम डायरेक्ट उस स्केल पे जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे होता है उसको देखकर बता सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर हो और वर्नियर कैलिपर गिवन हो, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वॉल्यूम डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर. First of all, you have to find its length, then its diameter. पहले उसकी लेंथ मालूम करते हैं, फिर डायमीटर मालूम करते हैं, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट होता है और फिर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एल से. तो इस तरह से वॉल्यूम, जहाँ पे फार्मूला इन्वॉल्व हो जाएगा और हम इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ये होगी इनडायरेक्ट मेजरमेंट. जब हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद उसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड शो करते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी वजाहत इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड होती है. सो मैग्नीट्यूड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कंसर्न. सो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? तो यू कैन equate a magnitude of a physical quantity is equal to value either integral or fractional multiplied by proper unit. एक वैल्यू होगी और उसके साथ क्या होगा, एक प्रॉपर यूनिट होगी. यू नो वेरी वेल अबाउट वैल्यूज़ या वैल्यू. कोई फिगर, कोई नंबर जो है वो दो तरह का होता है, या तो इंटीग्रल होता है या फ्रैक्शनल. या तो उसमें डेसिमल मौजूद होगा या डेसिमल नहीं होगा.
डेसिमल नहीं होगा वो इंटीग्रल वैल्यू कहलाएगी, और अगर उसमें डेसिमल होगा तो वो फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन, 20 इज़ अ वैल्यू विथ प्रॉपर यूनिट। कौन सी वैल्यू? इंटीग्रल वैल्यू। ये क्या है? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। 5.5 kg, 5.5 is a fractional decimal value, kg is a proper unit. So what is it? What is this? It's a magnitude of mass. 90 second magnitude of time, 9.8 meter per second square is the magnitude of acceleration due to gravity. अब जबकि हमने ये देखा कि magnitude of a physical quantity is equal to the value with proper unit. वैल्यू तो क्लियर है, इंटीग्रल होगी या फ्रैक्शनल होगी। व्हाट अबाउट यूनिट? यूनिट्स क्या चीज़ है? तो हम इस पर बात करेंगे। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ वी नीड सम स्टैंडर्ड्स। हमें कुछ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। इन स्टैंडर्ड्स को क्या कहा जाता है? यूनिट्स कहा जाता है, विच आर कॉल्ड units. So units are nothing but standards. We have developed system of standards. We have also developed types of standards. We have system of standards, you know, SI system, metric system, British engineering system, MKS system, etc. SI system, International Standard System of Units. So come to the point, types of units. What are the types of units? अच्छा, एक बात ये भी कहता चलो कि एक दौर था कि हमारे पास रिलायबल स्टैंडर्ड्स नहीं थे। मतलब हम लेंथ मेजर करने के लिए अपने राइट हैंड की बालिस्ट को या लेफ्ट हैंड की यूज़ करते थे, बट ये स्टैंडर्ड रिलायबल नहीं था, मैन टू मैन वेरी करता था। लिहाजा इंसान रिलायबल स्टैंडर्ड्स की तरफ गया तो उसने स्टैंडर्ड्स बनाए। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट इज बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। व्हाट आर बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और द यूनिट्स विच आर सेल्फ डिफाइंड आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लिहाजा फिज़िक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसीडर की जाती हैं उनकी मेजरमेंट जिन यूनिट्स में होगी उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहें। और अहम चीज़ क्या है कि ऑल दी फंडामेंटल यूनिट्स आर सेल्फ डिफाइंड। साइंटिस्ट ने हर फंडामेंटल यूनिट को, मीन्स SI बेसिक यूनिट को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में जो बेसिक यूनिट्स हैं उसको साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। सबसे पहले हम इस कॉलम में फंडामेंटल यूनिट्स को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कॉलम में जिसके टाइटल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल हैं, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट। लेंथ इज़ वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका नेम मीटर, यूनिट नेम जो है मीटर है, और इसको हम स्मॉल m से सिंबल ऑफ यूनिट स्मॉल m से शो तो इसे हम स्मॉल m, इसका सिंबल ऑफ यूनिट है मास किलोग्राम, और इसका यूनिट सिंबल है kg। टाइम थर्ड वन जिसकी यूनिट है सेकेंड, और इसका सिंबल है SEC, और इन शॉर्ट स्मॉल sb यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और उसका यूनिट सिंबल है A। टेम्परेचर केल्विन, और इसका सिंबल है सिंबल ऑफ यूनिट K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब हम देखेंगे कि सेल्फ डिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक यूनिट्स की बात करेंगे कि क्यों हम इसे कह रहे हैं सेल्फ डिफाइंड। फॉर एग्जांपल सेकंड जो कि बेसिक यूनिट है, बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है, उसको साइंटिस्ट ने किस तरह डिफाइन किया है। अ सेकंड
is the duration of 919,263,1770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. You know about फाइन लेवल्स जो स्प्लिट होते हैं तो सब लेवल्स बनते हैं, और सब लेवल्स स्प्लिट हों तो हाइपर फाइन लेवल्स जनरेट होते हैं. इस तरह आप देखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी बेसिक यूनिट है कैंडेला, इसको साइंटिस्ट ने किस तरह डिफाइन किया है. द इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लैटिनियम under a pressure of 101325 Newton per square meter is 1 candela if the radiations are coming perpendicularly out of its surface of area 1/600,000 square meter. This is what the definition of candela. In the same manner, electric current जिसकी बेसिक SI यूनिट है एम्पियर, इसको किस तरह डिफाइन किया है. द करंट थ्रू the two parallel wires of infinite length separated at a distance of 1 meter is 1 ampere if the magnetic force per unit length of each wire is 2 into 10 to the power minus 7 Newton. Okay, unit length of each wire पे 2 into 10 to the power minus 7 Newton की magnetic force ऐड कर रही. टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसकी बेसिक ऐसा यूनिट है केल्विन, उसको कैसे डिफाइन किया है. केल्विन, द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ 1/273.16 टाइम्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी SI यूनिट है मोल. Mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entries as there are atoms in 0.012 kg or 12 gram of carbon 12. ये हैं कुछ बेसिक SI यूनिट्स जिसको साइंटिस्ट ने डिफाइन किया. इनमें से हम कुछ बेसिक SI यूनिट्स को समझने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे आपको. For example, 1 Kelvin. Here 1 Kelvin is equal to 1/273.16 times the triple point of water. What is triple point of water? You know very well about melting point, boiling point, freezing point. Means a value, a temperature. So triple point of water means एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर लिक्विड स्टेट में भी हो, सॉलिड स्टेट में भी हो और गैसेस स्टेट में भी. इट्स राउंड फिगर इज 273 केल्विन बट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू इज 273.16. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज अ वाटर इज एट 0 degree centigrade and it is in a frozen state. 0 degree centigrade means 273 Kelvin and it's a 273 Kelvin. If we heat up the frozen state of water, water starts melting. Water melt होना शुरू होगा. 273 Kelvin पर जब वो मेल्ट होगा तो ये हीट जो हम दे रहे होंगे ये हीट ऑफ फ्यूजन होगी जो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने में हेल्पफुल साबित होगी, मेल्ट करेगी, मेल्टिंग प्रोसेस होगा. हम देखेंगे लेट्स से अगर 20% मेल्ट हुआ है तो 80% सॉलिड स्टेट में है और 20% लिक्विड स्टेट में इन दी एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 273 अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन. अब जब वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया तो डेफिनेटली इवेपोरेशन का प्रोसेस हो सकता है जिसमें कोई लिक्विड जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है एट एवरी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर वो जा सकता है. तो एट द सेम टेम्परेचर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स इसी टेम्परेचर पर किस स्टेट में चले जाएंगे, गैस स्टेट. सो वी से दैट 273.16 Kelvin, it's a value at which the water
is lying in liquid state, solid state as well as in gaseous state. So when we put 273.16, so it becomes 273.16 divided by, and you get 1 Kelvin. This is what the 1 Kelvin is defined. In the same manner अब हम define करेंगे 1 ampere. 1 ampere means किस तरह से 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है कि सपोज यू हैव 2 पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ये जो मैंने एरो यूज़ किया है ये वायर की इनफाइनाइट लेंथ को शो कर रहा है. ये दोनों वायर्स इनफाइनाइट लेंथ हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मीटर. इफ़ द 2 वायर्स आर कैरिंग 1 एम्पियर करंट, दिस इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. सो व्हाट हैपेंस, आप पढ़ेंगे कि हर करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है. लिहाजा ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स जो 2 पैरेलल वायर्स के अराउंड इंड्यूस होंगी, इनका इंटरेक्शन होगा और अगर सिमिलर पोल्स फेस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी और अगर अपोजिट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होंगे इस इंटरेक्शन के नतीजे में तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों पैरेलल वायर्स में, लिहाजा एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी और हर वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी वो दैट इज़ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर दोनों वायर में से 1 एम्पियर करंट गुजरेगा. तो इस तरह से 1 एम्पियर को डिफाइन करने की कोशिश की गई. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं 1 मोल की. एज यू नो, इफ अ सब्सटेंस is containing n number of fundamental entities, n number of atoms, molecules or ions, whatever be its state, then n will be equal to NNA. Small n is the number of moles and Na Avogadro's number. So number of moles will become equal to n over Na. So we can define 1 mole. A substance is supposed to be 1 mole. कब होगा substance is supposed to be 1 mole? If n is equals to Na, यानी total number of molecules or total number of fundamental or elementary entities is same as the Avogadro's number. Avogadro's number क्या है? 6.02 × 10⁻23 atoms or molecules or ions etc. means elementary entity. So the ratio n over Na becomes 1. This is what the way 1 mole is defined. Also we give some important information about the mole concept. When we write 12 AMU or 12U, अक्सर हम इस तरह लिखते हैं 12 AMU atomic weight को 12U. तो what does it mean AMU? आमतौर पे तो इसे पढ़ते हैं atomic mass unit. But what do you mean by atomic mass unit? This is actually unified atomic mass. इसको रिवर्स पढ़ें तो unified atomic mass. U stands for unified atomic mass. For example, 12 gram, हम in the mass 12 gram of carbon की बात करें तो 12 gram में क्या है, ये कितने कार्बन एटम्स का मास है? दिस इज यूनिफाइड एटॉमिक मास 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. सो जैसे ऑक्सीजन है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका 16 ग्राम मोलर मास होगा. 16 ग्राम का मतलब क्या है कि क्या ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम है? नो. 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ oxygen will contain 16 grams of mass. So this is the basic concept of mole as far as the substance is concerned. ये हमने बेसिक यूनिट्स के हवाले से गुफ्तगू की और जो सेल्फ डिफाइंड कॉन्सेप्ट है उसकी वजाहत की.
Now come to the second type of unit, that is drive units. The units drive, very simple, the units drive from the basic units are called drive units. Some drive units are meter cube, kilogram per meter cube, meter per second and meter per second square. Now we briefly understand the concept of drive units by giving few examples. For example, we need SI unit of velocity. हमें SI unit of velocity चाहिए, तो हमारे पास क्या फार्मूला है? जनरली द फंडामेंटल इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू S is equal to Vt. This implies that V is equal to S over T. What is S? If V is supposed to be velocity, then S is a distance covered in a particular direction, and T is the time required for the coverage of that distance in a particular direction. What is SI unit of S is meter. What is the SI unit of time is second. So the unit derived is meter per second. Similarly, acceleration is defined as the rate of change of velocity, delta V over delta T. Delta V means change of velocity. What is the S drive unit of velocity? S derived above meter per second. And what is the unit of time interval? Again second. So meter per second divided by second, and this is mathematically 1 more second, and becomes meter per second square, another drive unit of acceleration. Now the last one, F is equals to ma, is equal to m is the mass of a body. What is its SI unit? Kilogram. What is the drive unit of acceleration? Meter per second square, so it becomes kilogram meter per second square. And to pay an honor to the scientist, we replace kilogram meter per second square by Newton. So this is what the concept of drive units. Now come to the last portion of our lecture number 1, that is the supplementary units, concept of supplementary units, which can be derived from, which cannot be derived from basic units. हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का आइडिया कब लाते हैं, क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? जब हम यूनिट्स ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं होते. हम अब देखेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए कि किस तरह हम ड्राइव यूनिट नहीं कर सकते एक फिज़िकल क्वांटिटी के. फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस फिज़िकल क्वांटिटी है, दैट इज़ एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस r. The famous equation is S is equal to r theta and theta is equal to S over r. अब हम ये चाह रहे हैं कि इसकी कोई SI यूनिट डेवलप हो जाए. तो arc is a length, so its SI unit is meter. Radius is also a length, so its unit is again meter. meter meter कैंसिल आउट होगा और आप ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं आ रहे. हमने शायद सोचा कि हम किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएं तो शायद यूनिट ड्राइव हो जाए, लेकिन वहाँ भी ऐसा मुमकिन नहीं. फॉर एग्जांपल, सीजे सिस्टम में जाएं तो सेंटीमीटर एस की यूनिट, आर की भी यूनिट सेंटीमीटर, इस तरह ही यूनिट्स कैंसिल आउट होंगे, इसलिए कि ये सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का रेशो है थीटा. फुट से फुट कैंसिल हो जाएगा इफ़ यू गो टू ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम इसकी यूनिट ड्राइव नहीं कर सकते. सो वी साइन हेयर अ यूनिट रेडियन फॉर मेजरिंग थीटा विच इज़ कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री यूनिट. तो हम एक यूनिट असाइन करते हैं रेडियन, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट है. अब इसकी ज़रूरत एक और एंगल से भी वाज़ेह होती है कि आपको पता है कि 57.3 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 रेडियन. कि जब कोई आर्क ऑफ अ सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल पर 57.3 डिग्री का एंगल फॉर्म करे तो उसकी आर्क लेंथ
रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो क्लियर नहीं होगी वाजे, जैसे कि इधर 1 मीटर इज इक्वल टू 100। अगर मैं सिर्फ इतना स्टेटमेंट दूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, भाई क्या मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100, व्हाट डू यू मीन बाय 100 किलोमीटर, 100 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कुछ तो बात यहाँ यूनिट लाजमी होनी चाहिए। सो वी असाइन हियर सेंटीमीटर। इन द सेम मैनर अगर हम कहते हैं 1 kg लिखते हैं इज इक्वल टू 1000, तो जब तक हम वहाँ पे कोई यूनिट असाइन नहीं करेंगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा, कोई बात वाजे नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम ग्राम लिखेंगे तो बात क्लियर होगी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। अब 10 तो लिख दिया हमने, आगे कोई यूनिट मेंशन नहीं की, तो यूनिट मेंशन होना ज़रूरी है। तो जब हम यूनिट मेंशन करेंगे कि इट इज़ मिलीमीटर, तो बात क्लियर होगी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। लिहाजा हम जो है सप्लीमेंट्री यूनिट असाइन करते हैं, वरना ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 watt, 1 radian. Another SI supplementary unit is star radian, which is this supplementary unit of solid angle. एंगल और सॉलिड एंगल का फ़र्क क्या है? वेरी सिंपल। एंगल की बात करते हैं 2 डायमेंशनल केस, जैसे सर्कल की बात हो रही है, और जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल केस। फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्फीयर, लेट्स से अ फुटबॉल। Here in case of circle the arc length is making an angle at the center of circle. In case of sphere, in case of football, the surface will make an angle at the center of a sphere. This angle is called solid angle and its supplementary unit is star radian. So we stop here lecture 1 related to chapter number 1. The title of chapter is Scope of Physics. इंशाल्लाह ये पहला लेक्चर जिसका चैप्टर नंबर 1 से ताल्लुक़ था स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। असल में हमें सिर्फ समझना नहीं होता, अपने एप्टीट्यूड को भी बढ़ाना होता है। टीचर्स का काम सिर्फ किसी टॉपिक को समझाना नहीं, बल्कि उसका एप्टीट्यूड भी मेक करना होता है स्टूडेंट को। वरना क्या होता है कि इवन गेटिंग वेरी हाई मार्क्स एप्टीट्यूड टेस्ट में स्टूडेंट रह जाता है, इसलिए कि हम असातिज़ा वो काम क्लास में नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि कुछ एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए समझाने के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।